Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your instructor Mahavish. Welcome to the second lecture of week 2nd. In today's lecture, we will continue the chapter number 8, which is data protection and security. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. So chapter 8, in this lecture, we will cover the topic 8.3 and on page number 97, please open your books and hold the lead pencil with you as well. Okay, Bacho, in your previous lecture, we had covered data integrity, identity theft, and data privacy. In today's lecture, we will cover form of security threats, internet fraud, hacking, phishing, adware, and spyware. Okay, ये सब टॉपिक आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे. So let's get started with the first one, which is form of security threats. Basically, threats to data privacy, identity, and data integrity can take several forms. So, knowing about these different forms help us to become aware of them and avoid them. So, we will look at some common form of security threats like internet fraud, phishing, adware, spyware, and hacker. So, let's get started with internet fraud, which is the first heading on your book. Basically, fraud happens when a person cheats another for some financial gain. Okay, so fraud is quite common in business. So we hear about incident of fraud all the time. So now that many businesses have become internet based, so we also find fraud taking place over the internet. So unfortunately, internet fraud is very easy because buyers and sellers can't see each other or meet personally, so they might be located at very large distance from each other. So internet fraud can take the form of scams. So what is a scam? In your book there is a definition of scam. Please open your books and underline the line. The sixth line: a scam is committed when a person promises to give out huge prizes to people who provide their personal detail on a website or through email. इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये आपकी स्कैम की डेफिनेशन है. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, इफ़ आई टेक द रियल लाइफ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, यू रिसीव मैनी मैसेजेस ऑन योर फ़ोन. फॉर एग्जाम्पल, बेनज़ीर फंडिंग और जीतो पाकिस्तान. तो उसमें आपको ये कहा जाता है कि आपने क्या करना है, इस नंबर पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करनी है. आपका 25 लाख का प्राइस बॉन्ड निकल आया है, ये जीतो पाकिस्तान में आपका कोई प्राइस निकल आया है. ऐसे आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं ना आजकल. दिस ऑल आर स्कैम. आपको बंदा नज़र नहीं आ रहा होता, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट जिस बंदे ने आपको टेक्स्ट किया है वो आपसे कितने डिस्टेंस पे है. तो दीज ऑल आर द स्कैम्स. दिस इज़ नॉट द रियल थिंग्स. ओके, ऐसे ही अगर आपको कभी फ़ोन कॉल रिसीव आती है कि बेनज़ीर सेहत कार्ड की तरफ से आपको इतने पैसे मिले हैं, आप आके इसको ले लें या इस नंबर पे कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन दें, तो आपने वो सब स्कैम है, क्योंकि रियल में आपको कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा. तो इस तरह के फ्रॉड इंटरनेट पे होते हैं. ठीक है. So the fraudster disappears with all the personal information, can't be caught. अब क्या है कि अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे तो बाद में आपको कहाँ पता किस बंदे ने मैसेज किया, उसने अपने सिम ब्लॉक कर दी, ख़त्म कर दिया, आपको तो पता ही नहीं होगा ना, आप उसको पकड़ सकते. सो ही माइट देन यूज़ द इंफॉर्मेशन टू कमिट क्राइम्स. For example, serious internet fraud involve asking online customer to make an online purchase. So the fraudster then disappear with the money without delivering the goods. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं कोई चीज़, तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लिया और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से उसको पे कर दिया है. नाउ यू आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर और आपको कुछ भी प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ. तो बाद में आप कहाँ ढूंढेंगे कि किसने आपसे पैसे लिए? वो वेबसाइट ही ख़त्म होगी जहाँ पे जाके अपने अपने आपने क्रेडिट कार्ड से उसको पे किया था. तो इस तरह के ऑनलाइन इंटरनेट पे स्कैम बहुत कॉमन हो गए थे. मोस्टली जो लोग अनअवेयर होते हैं कंप्यूटर से या ऑनलाइन सिस्टम से, तो वो ज़्यादातर इस तरह के फ्रॉड्स में फंस जाते हैं. और फिर ये होता है कि वो हमारे यहाँ साइबर क्राइम का है, लेकिन उतना स्ट्रांगली उस चीज़ को नहीं पाकिस्तान में कवर किया गया. तो अवॉइड करें कि आप ऑनलाइन शॉप जब भी करते हैं तो आपको पता हो कि कौन सी वेबसाइट ऑथराइज्ड है और कौन सी नहीं. हर एक के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी. ठीक है. अब हम बात करते हैं हैकिंग की, हैकर्स.
मोस्टली आपने सुना होगा, इवन कि आपके स्कूल फ्रेंड्स कहते हैं आई एम द हैकर, मैंने आपका फेसबुक अकाउंट हैक किया। मोस्टली आपके फ्रेंड्स कहते हैं ना, मैंने तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया। आपके पास इतनी फ्रेंड लिस्ट थी, इतने लोग थे आपके फ्रेंड लिस्ट में। दीज ऑल आर फ्रॉड। बेसिकली जो आपके हैकर्स होते हैं वो रियल प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सो द हैकर्स आर द डेवलपर हु नो द कंप्यूटर वेरी वेल। ओके, वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं। तो हर कोई बंदा हैकर नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसे कहता है तो वो सिर्फ एम ही कहता है, उसको पता है कि वो हैक नहीं कर सकता, या उसने क्या किया, आपकी कुछ तुक्का लगाया, आपका पासवर्ड लग गया तो लॉगिन हो गया, या आप ही ने उसके साथ शेयर किया होगा, आपको नहीं पता होगा, या उसने किसी से स्टील कर लिया होगा आपका डेटा। तो इस तरह की हैकिंग जो होती है बेसिकली आम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सो हैकर्स होते क्या हैं? ऑन पेज नंबर 98 आप अंडरलाइन कर लें, बेसिकली हैकर्स हैं क्या। Hackers are people who gain access a computer and then carry out activities like stealing data, changing information, and so on. These are the definition of hacker. So underline these lines, please. So these activities are done without the knowledge of the original user. So hackers usually target e-commerce website. बच्चों e-commerce websites कौन सी हैं? वो वेबसाइट जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉप करते हैं, अमेजॉन, द्रास.pk, बेसिकली दीज आर द ई-कॉमर्स वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट्स। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है, उस तरह की वेबसाइट्स भी हैक हो सकती हैं। सो अ हैकर माइट हैक अ सिस्टम टू स्टील मनी एंड इंफॉर्मेशन और जस्ट फॉर फन। मोस्टली जो हैकर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया था, प्रोफेशनल होते हैं, वो पूरी कोडिंग करते हैं। तो कोई भी बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो फॉर व्हाट पर्पस? तो मोस्टली तो वो पैसों के लिए करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को, कि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो उनको वहाँ पे कर देते हैं, प्रोडक्ट्स आते कोई नहीं है, ऑर्डर्स आते ही कोई नहीं है, और हम वेट करते रहते हैं, तो वो पैसा बनाते हैं। सेकेंड थिंग, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं और बाद में आपके डेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपकी वेबसाइट तबाह कर देते हैं। कि वो ये है क्योंकि पर्सनल दुश्मनी हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, किसी एम्प्लॉय को अगर फायर कर दिया तो उसने गुस्से में आके उस कंपनी का डेटा लीक कर दिया, और जस्ट फॉर फन, या कभी कभी एम ही कि बस ठीक है कुछ काम नहीं था तो उसको कर लिया था, लेकिन जस्ट फॉर फन बड़ा रेयर केस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे है फिशिंग। अब फिशिंग क्या है? फिशिंग के ये जो आपको स्पेलिंग यहाँ पे हैं, PHISHING, इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं? फिशिंग। ओके, सो फिशिंग इज एन इलीगल एक्टिविटीज। बेसिकली हैकिंग भी इलीगल है और फिशिंग भी इलीगल एक्टिविटी है। तो इट हैपेंस when someone pretend to be a reliable organization such as a bank to obtain personal information। और अब आप जो फिशर है, जो ये फिशिंग करता है, वो क्रिएट करता है वेबसाइट दैट इज सिमिलर टू द वेबसाइट ऑफ एन एक्चुअल बैंक। So the fisher then send email or message to the customer of the actual bank asking them to visit the fisher's website. So this misleads internet user and they disclose private information such as their bank account number on the fisher's website. So the fisher can then misuse this information. वट डज़ इट मीन? कि जो फिशर था आपका, वो क्या करता है कि वो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करें और आप उस बैंक की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं, तो फिशर बिल्कुल उस जैसी एक वेबसाइट बनाता है। उसका GUI, उसका इंटरेक्शन, उसका इंटरफेस बिल्कुल आपकी ऑन जो रियल वेबसाइट है उसके जैसा होता है। आजकल आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट खोलें तो फर्स्ट पेज पे 10 to 15 आपको आ जाती हैं। आपको क्या पता कौन सी रियल है कौन सी नहीं? वो बिल्कुल उसके जैसी एक वेबसाइट बनाता है। कस्टमर कहता है ओ ये तो मेरे बैंक की वेबसाइट है, वो वहाँ जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है, रियल के वो फिशर ने बनाई होती है उस जैसी ही, कि कस्टमर से इन्फॉर्मेशन ले ले। तो फिशिंग इज़ समथिंग कि जो रियल डेटा को कॉपी करके उस जैसा एक डेटा क्रिएट किया जाता है ताकि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवेयर। नेम से देखिए, एडवेयर। So adware is a type of software that is annoying but usually harmless। अक्सर आपने देखा होगा, आप गूगल खोलते हैं तो साइट पे एड्स आना शुरू हो जाते हैं, यूँ ब्लिंक करके, ये टिंग से एक बीप आती है और एक आपको
सामने ऐड नज़र आ जाता है। फॉर एग्जांपल अली बाबा के शूज़ का आजकल बहुत आता है। आप याहू पे कोई ईमेल खोलते हैं तो साइड पे आपके एड्स चल रहे होते हैं कि यहाँ से शॉप करें, यहाँ से शॉप करें, डिफरेंट किस्म के आपके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं बहुत अनोइंग होते हैं। आप उनको बार बार स्टॉप करें, आप ब्लॉक करें या आप उसको रिपोर्ट कर दें, लेकिन ये होता है कि वो टाइम एंड अगेन आते रहते हैं तो बड़ा अनोइंग होता है। बंदा थोड़ी देर के लिए बंदे का ध्यान ना उस ऐड की तरफ चला जाता है, तो वो जो काम कर रहा होता है वो रह जाता है। तो ये यूजुअली हार्मलेस होते हैं लेकिन ये अनोइंग बहुत होते हैं। सो व्हेन अ यूजर विजिट अ वेबसाइट, एड विल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो दीज एडवर्टीजमेंट अपीयर्स इन पॉपअप विंडो, टाइम एंड अगेन पॉपअप होकर विंडो पे आ जाते हैं। सो दिस कैन बी वेरी इरिटेटिंग फॉर द यूजर बिकॉज ही हैज़ टू क्लोज अ पॉपअप विंडो ईच टाइम इट अपीयर्स। सो ये बड़ा अनोइंग सा हो जाता है, ठीक है। ये तो आपके एडवेयर्स थे। अब हम बात करते हैं स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब क्या है? बेसिकली बच्चों, स्पाई होता है किसी चीज़ को जासूसी करना, ठीक है। हम कहते हैं स्पाई। स्पाई क्या है? स्पाइंग इज समथिंग कि आप किसी चीज़ को की जासूसी करें, उसको देखें। या इसी तरह अब आपका स्पाईवेयर जो है बेटा पेज नंबर 99 पे है। Spyware basically monitors a website the user visit. So it sends the information to a predefined source. The source can misuse the information or sell it to the interested parties. So such as owner of other websites. So the owners use the information to make their website more interesting because they know what type of website different users usually visits. So spyware is something कि आप एक चीज़ को देखते रहते हैं, अच्छा वो क्या कर रहा है, वो कितना विजिट कर रहा है, या यूज़र आजकल यूज़र की इंटरेक्शन किन वेबसाइट्स पे, उसको देख के नई वेबसाइट बनाना शुरू कर दे। तो स्पाईवेयर आपके सिस्टम में कैसे होते हैं कि आप किस वेबसाइट को ज़्यादा देख रहे हैं, कस्टमर कहाँ पे जा रहे हैं, कस्टमर का क्या है, तो वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं। आपको पता ही नहीं होता और आपके सिस्टम से आपका डेटा स्टील हो रहा होता है, ठीक है। स्पाईवेयर इज समथिंग कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर क्या करे कि जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको पता लगता जाए, ठीक है। सो दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. So this is all about today's lecture. So today you people have another activity which is read page number 97 to 99. Read it twice. आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। कोई वर्ड समझ नहीं आया, स्लाइड में कोई लाइन मिस हो गई तो क्यूरी सेशन में वो आया व्हाट्सएप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आज आपकी एक्टिविटी है प्लस आपका होमवर्क है जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ हैकर? How might a hacker misuse private information? So on page number 98 वहाँ पे हैकिंग की हेडिंग है, वो इसका आंसर है। Same as with question number 3, how does a fisher require personal information from internet user? Same on page number 98. And question number 5, how does adware works? So it's also on page number 98. सो स्टूडेंट्स, आपने ये करना है, आपने एक सेपरेट शीट पे लेकर अपना ये होमवर्क करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको स्कूल से आंसर की प्रोवाइड की जाएगी उस पर आपको एक्यूरेट कंप्लीट आंसर्स लिखे गए हैं। जब आपके पास वो आंसर कीज़ आ जाएंगी तो आप उन आंसर कीज़ को याद भी करेंगे और वो अपने नोट्स पे बनाएंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।